Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Namaskar friends, in this video we will try to understand the intricacies of the three gunas which are explained as per Sanatana Dharma and also vividly explained in the Bhagavad Gita, and also we will understand how going beyond these three gunas is the prerequisite for liberation or moksha. So let's begin. See, the full Vedic Siddhant Sanatan Dharma is based on the concept of Purusha and Prakriti. So we can only understand the complex nature of the gunas if we understand the basics of what is Purusha, what is Prakriti, made of. So let us understand this. So we have explained Prakriti is the cosmic energy without consciousness. So it is it doesn't have consciousness, and it is a cosmic energy. And Purush is the divine consciousness without action. So this is the difference of Prakriti and Purush. When Purush and Prakriti meet, then a living being is born. So all living beings are created by the union of Prakriti and Purush. And Prakriti, as we know, it constitutes 23 elements, the 5 basic elements: water, fire, air, earth, space, the 5 senses of perception, the 5 sense objects, the 5 organs for action, and the 3 subtle elements: mind, intelligence, and ego. So these 23 components constitute Prakriti. Now Prakriti is conditioned by 3 gunas. So guna is the mode of goodness, which is called Sattvic, mode of passion, it is Rajasic, and mode of ignorance, which is Tamasic. So all of us have a combination of Sattvic, Rajasic, and Tamasic, and this is influencing our behavior, our choices in life. So let's understand further. So we will have a confusion that what is the constituent of a living being and a non-living being. So both will be a part of Prakriti. Both will have some gunas, but the Purusha will only be there in the living beings, not there in non-living beings. And because of that, the non-living beings will not have any awareness. They will have no karma or karmic cycle rebirths. So this is the difference. So Purusha always stands alone. It's a pure consciousness, and Prakriti will unfold into 23 volutes. So Purusha and Prakriti will be making a living being, and a non-living being is Prakriti alone. And what is the nature of the Purusha? It is eternal and changing, non-material. Purusha, when we say it is the soul, and the function is just as a witness, so it will never act. It is the Prakriti that will act, and there are infinite Purushas. So all of us are having souls which are different, which are migrating from one birth to the other, and the gunas act on Prakriti, and Purusha is untouched. So the relation to the body and the mind is it appears bound due to identification. So we get identified unnecessarily to the body, thinking that we are the body, not the soul, and that is the first step in spiritual journey, in which we are able to understand the difference. And liberation only happens when we realize that I am not this body, I am not Prakriti, I am soul, I am Purusha. So presence, like we said, is only in living beings. So the 3 gunas are 3 forces of Prakriti. So Sattvic, the core quality is clarity, peace, harmony, knowledge, transparency, and balance. That is in the Sattvic guna. The Rajasic guna is a mode of passion, so activity, motion,
desires, ambition, restlessness. So movement, all of this will be in the Rajasic. The Tamasic is a mode of ignorance. So darkness is compared to ignorance. So inertia, lack of inertia, confusion, lethargy, ignorance, heaviness, obstruction. These are all tamasic, prakritis. We are using the hotel metaphor again and again just to make it very simple for you to understand. So consider a hotel building which has many rooms. So this hotel building be it known as Prakriti. So just for making you understand. And inside the Prakriti is a room. The room is the gross body, and when we enter into the room, with the soul, so then there will be occupant in the room. The occupant will be having a causal body, which was we are using the metaphor of a suitcase, and inside the suitcase will be a subtle body, which is mind, intelligence, ego, which are items for daily use. So वो हमारे इस बर्थ में हम ये सटल चीज़ों को यूज़ करेंगे. कॉजल बॉडी जो है वो हमारी इट इज़ द कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. सो ये एक बेसिक सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ में. सो जैसे हमने बताया, प्रकृति होटल बिल्डिंग है, उसमें बॉडी, माइंड, सेंसेस सभी हैं. जो गुनाज हैं वो रूम की कंडीशन है. अगर हम ब्राइट रूम चूज़ करते हैं, जब सब कुछ उसमें सही है, पॉजिटिविटी है, तो वो सात्विक है. अगर हम बहुत ही बिजी वाला रूम चूज़ करते हैं तो वो राजसिक है. और डार्क और अनहेल्दी रूम चूज़ करते हैं तो वो रूम के कंडीशन तामसिक दिखाता है. रूम, एज वी सेड, इज द ग्रॉस बॉडी, which is the physical body. The subtle body that we said is the contents of the suitcase. The subtle body is the mind, ego, intelligence जो हम everyday use करते हैं इस life में. और causal body is the locked suitcase. The causal body is the other deep impressions. It is the cause of our existence. The Purusha, the soul, is the guest जो अभी check in करके इस room में आया है, वो पुरुषा है. लिविंग बीइंग तभी होती है जब रूम के अंदर गेस्ट आता है, प्रकृति और पुरुष जब उनका मिलन होता है. और नॉन लिविंग, तो अगर एम्प्टी रूम रहता तो वो प्रकृति है पुरुष के बिना. तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस मेटाफोर the differences between the prakriti, the purushas, the gunas, the different types of bodies. Let's go further. We can easily explain that the causal body is the why. It is a why we are the way we are. It holds the causes, the karmic seeds, the latent tendencies, the deep impressions. So causal body is basically answering the why. हमारा अस्तित्व क्यों है. The gunas are the what shape our tendencies. They are the material qualities, sattvic, rajasic and tamasic, that color the causal and the subtle bodies. तो हम क्यों किसी टेंडेंसी में बंधे रहते हैं, वो हमारा गुनास के कारण है. और सटल बॉडी है हाउ वी थिंक, फील, डिजायर एंड एक्ट. इट इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच टेंडेंसीज एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो ये सटल बॉडी है. जो फ्री विल है वो वेयर है, वेयर हम इंटरवीन करते हैं. इट ऑपरेट्स इन दिस सटल बॉडी. दो सटल बॉडी आज हमारे प्रेजेंट बर्थ में जो हमारे माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो है, वो हम एक्ट कर सकते हैं. और वो एक्ट करने का जो फ्री विल है, वो फ्री विल इज द स्पेस बिटवीन द इम्पल्स. हमको लगता है कि हम जिम जाएं और एक्चुअली हम जिम पहुंचते हैं कि नहीं, वो जो गैप है वो वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो सकती है और वहीं पे फ्री विल काम आती है. So this is just to explain why is the causal body, what is the gunas, how is the subtle body, and where is the free will. So just to give you an explanation of that. इस सब में आत्मा is what we are. आत्मा is just observer. वो हम क्या हैं
So we are not this body, Sanjay Sharda. We are this soul who is migrating from one life to the other, and this life known as Sanjay Sharda. So let's move ahead. जैसे हमने बताया, तामसिक राजसिक और सात्विक है, इनर्शिया डिस्ट्रक्शन तामसिक है, एक्टिविटी डिजायर राजसिक है, ट्रुथ एंड नॉलेज सात्विक है। ये सब हमें गीता में कई बार कई वर्सेस में बताया गया है। सो जो तामसिक है एसोसिएटेड विद द पास्ट और बीइंग स्टक, तो ये बहुत सारे हमारे हम जानते होंगे लोगों को जो अनमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्टैग्नेंट हैं, वो अपने पिछले किसी बर्थ के एक्सपीरियंस के कारण उनका तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा प्रबलित है। बहुत सारे हमारे लोग और इसी राजसिक में हमारे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स होंगे। इट्स फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग। वो हम एक्सपीरियंस ऑफ पैशन, सेंस ऑफ हाइपर एक्टिविटी, हम चाह रहे हैं कि हम काम करें, हार्ड वर्क करें और मेटलिस्टिक चीज़ें पाएं। एक चीज़ अगर हमारी डिज़ायर ख़त्म होती है तो दूसरी डिज़ायर जाग रहती है और हम ऐसे इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। ये राजसिक है एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सात्विक इज गुना ऑफ हार्मोनी। इसमें ट्रुथ और नॉलेज है। यही गुना से हमें जॉय मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। तो जस्ट टू जैसे हमने गीता में फूड के भी अलग अलग बताया गया है, लाइफस्टाइल भी बताया गया है, डिसीजन के पैटर्न्स बताए गए हैं, लाइफ के आउटकम बताए गए हैं। तो ये सब सात्विक, राजसिक और तामसिक में जो हमारी प्रवृत्तिज हैं उसमें हम किस तरह का फूड खाना पसंद करेंगे, किस तरह की लाइफस्टाइल जीना पसंद करेंगे, क्या किस तरह का हमारा डिसीजन लेने के पैटर्न होंगे। सात्विक में लॉन्ग टर्म क्लैरिटी डिसीजन होगा, राजसिक में इम्पल्स और डिज़ायर ड्रिवन होगा, और तामसिक वाला बेचारा तो कन्फ्यूजन में ही रहेगा, डिसीजन शायद ले ही ना पाए और प्रोक्रेस्टिनेट भी करेगा। और लाइफ के आउटकम जैसे हमने कहा कि तामसिक में तो डिक्लाइन, स्टैग्नेशन रहेगा, राजसिक में सक्सेस तो मिलेगी पर सक्सेस से उसको सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वो इसी चक्कर में रैट रेस में घूमता रहेगा। और सात्विक में पीस और हार्मनी है। तो दिस इज वेरी क्लियर। एक कन्फ्यूजन मुझे भी था और मैंने थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव क्लैरिफाइड दिस डाउट्स दैट आई हैड कि क्यों हमें बताते हैं कृष्ण जी कि सात्विक में रहना हमारे फाइनल गोल नहीं है। फाइनली आई अंडरस्टूड के जो हमारी स्पिरिचुअल लैडर है उसमें हम जो सात्विक है वो ऊपरी पादान पे है, पर वो स्टिल लैडर है। हम वो लैडर यूज कर रहे हैं मोक्ष को पाने के लिए, लिबरेशन आने के लिए। और अगर हम वो लैडर छोड़ना ही ना चाहें, लैडर में हम पहुंच गए हैं ऊपरी रंग से, पर अब लैडर हम छोड़ना नहीं चाह रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दैट्स व्हाई सात्विक इज नॉट द फाइनल गोल, वी शुड अंडरस्टैंड it is the steps in which we can have a spiritual journey which is bringing us closer to the goal of liberation. but अगर हम वो लैडर छोड़ना ही नहीं चाहें, सिमिलर टू कि अगर हम बोट में हैं, बोट हमें राइड बहुत अच्छी लग रही है और हमारा किनारा निकट आ गया है, ये भवसागर हम पार करना के निकट आ गए हैं कि हम पार कर सकते हैं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, पर हम बोट को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, हमको बोट से ही लगाव हो गया है। तो दिस इज समथिंग लाइक कि हम सात्विक से ही हमारा प्रेम हो गया है। और जैसे चेन से तो हम सब बंधे हुए हैं, पर चलो हमारी चेन सात्विक में हम उस चेन को तोड़ना ही नहीं चाह रहे, चाहे वो चेन अगर गोल्डन भी है तब भी हमको लग रहा है कि चेन से ही बंधे रहना हमारी जिंदगी है। तो वाई सात्विक इज नॉट द फाइनल गोल, इज सात्विक इज स्टिल प्रकृति। तो सात्विक इज द रिफाइंड मैटर, एक कॉन्शियसनेस नहीं है। हमें तो जो पुरुष की जर्नी है, जो आत्मा और परमात्मा की मिलन वाला जो फाइनल स्टेप है वो करना पड़ेगा और सात्विक के थ्रू ही जाएगा, पर सात्विक में एंड नहीं होता है। सात्विक विल अगेन बाइंड, इट विल बाइंड बाय अटैचमेंट टू हैप्पीनेस एंड नॉलेज। जो चीज़ जिससे हमें जॉय, हैप्पीनेस, क्लैरिटी मिल रही है उससे हम अटैच्ड हो जा रहे हैं, उसको हम फिर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे।
और कुछ कुछ ईगो भी आ जाती है कि मैं तो सात्विक हूँ, मैं तो प्योर हूँ, स्पिरिचुअल हूँ। बहुत सारा जो हमारे वेजिटेरियन या वेगन फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ों को कई बार हम सुनते हैं कि भाई मैं तो बहुत सात्विक हूँ, और उस चीज़ की एक ईगो है कि भाई तुम तो राजसिक या तामसिक हो और मैं मेरी फूड हैबिट्स इस तरह की है। तो ये जस्ट गिविंग यू ऑन अ लाइटर वेन, एंड इट्स स्टिल साइक्लिक। सात्विक में आप रहोगे तो नेक्स्ट आपके जो बर्थ रीबर्थ और वो कार्मिक साइकिल चलता रहेगा, आपको जर्नी इज नॉट गोइंग टू एंड। सो दैट्स व्हाई सात्विक इज नॉट द फाइनल गोल। हाउ टू लिव सात्विक विदाउट ईगो। जो गीता का हमें ज्ञान है वो है कि हम सात्विक स्टेज में आ जाएं। हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम चैरिटी कर रहे हैं, जो हम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, वो सब सात्विक हो। जो हमें जॉय मिले, जो हैप्पीनेस मिले, वो सब सात्विक किस्म का हो। बट वो सात्विक से जो हमें क्लैरिटी हो नॉलेज की, उससे हम नेक्स्ट पादान में जा सकें विदाउट ईगो। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो सात्विक फूड हम जो लें उससे माइंड और बॉडी हमारी प्यूरिफायर है। सात्विक जो हम वर्शिप करें वो हमें डिवोशन को और डीपन करे, और हमारा फियर और जो डिज़ायर है उस पर हमारा कंट्रोल आए। तो सात्विक चैरिटी है, वो हमारी ईगो को ख़त्म करे और हमारी कंपैशन को बढ़ाए। जो सात्विक की स्टडी है वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन को शार्पन करे, क्या धार्मिक है, क्या नॉन धार्मिक है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये जो हमारी बुद्धि है वो और तेज हो, द राइटफुल नॉलेज वाली। सात्विक एक्शन जो हमारे जो कार्मिक लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि सिर्फ अकर्मा से ही हमारा कार्मिक लोड नहीं बढ़ता, तो वो हम करते रहें। विटनेसिंग अवेयरनेस, ये आइडेंटिफाई ना करें अपने बॉडी से और हमने जो आसपास अपना जो साम्राज्य इकट्ठा किया हुआ है। हम ठीक है, अब उस जर्नी में हमें मौका मिला दूसरों के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का, दूसरों को प्रेरित करने का, बट हमारी जर्नी आगे है। हम यहीं पे अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें। ह्यूमिलिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे ही सात्विक ईगो नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग सात्विक ईगो में रहते हैं। ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि हैं, उनको ईगो का उनका कोशंट बहुत ही हाई है। वो झट शाप दे देते हैं, झट एंगर हो जाते हैं। तो ह्यूमिलिटी जो आनी चाहिए एक सात्विक जर्नी में, वो उनकी लैकिंग है। और this of course was just observation, not to be taken any way which. So self knowledge, self realization जो है, उससे उनको जो उनके अंदर जो एक डिविनिटी है, जो उनके अंदर जो एक आत्मा है, वो उसके दर्शन होंगे और फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। So this was the purpose of this, and the final path. That's why we are saying कि how to go beyond the gunas। ये गीता का मेथड है लिबरेशन के लिए, और उससे ही हमें हमारे जो स्टेप्स हैं गीता में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि सात्विक जैसे हमें जीना है, माइंड को प्यूरिफाई रखना है, कर्म योगा करना है जिससे राजसिक और तामसिक हमारी प्रवृत्तिज काबू में रहें, विटनेसिंग करनी है, आइडेंटिफिकेशन के चंगुल से अपने आप को हटाना है, आई मी माई सेल्फ इसमें नहीं पढ़ना है, और सेल्फ नॉलेज को डीपन करना है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, और मुझे उस आत्मा की डिविनिटी का ज्ञान है, और वो आत्मा और परमात्मा का जो फाइनली जो मिलन होगा वही मेरा उद्देश्य है। सरेंडर डिवाइन को करना है तो ईगो डिसॉल्व रहेगी, गुनाज हमारे हटेंगे अगर हम अपने में रहेंगे, गुनाज को अपने को कंट्रोल नहीं करने देंगे, और लिबरेशन तभी आएगी हम जैसे गुनाज को कंट्रोल कर लेंगे। वो हम शिव जी की जब पूजा करते हैं तो उनके त्रिशूल ये तीन गुनाज को दिखाता है, और वो त्रिशूल अलग रहता है ये दिखाने के लिए कि शिव जी ने वो ये 3 गुनाज को अपने से अलग रखा है। तो हमें भी
उस स्टेज तक पहुंचना है। ये गीता का एडवाइस है, उपदेश है। तो सात्विक एक पाथ है, हमें पाथ से आगे बढ़ना है, पाथ में स्टक नहीं रहना है। और सेल्फ नॉलेज डेस्टिनेशन है, और सेल्फ नॉलेज जब आएगी तो लिबरेशन हमें मिलेगी, फ्रीडम फ्रॉम ऑल गुनास बनेंगे। तो यही पूरा गीता का जो सारांश है, गुनास के बियॉन्ड जाने का, उसका मेन समरी मैंने आपको बताने की चेष्टा की। I hope it was useful. Thank you so much. Many times I am using metaphors which are very mundane, so it's just for clarity purposes, not to be taken otherwise. Thank you. God bless. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.